Hello my dear students, this is Radha. Welcome to our classroom. In this video we are going to discuss chapter 3 of class 6th NCERT. Chapter 3 name is Fiber to Fabric. One more information, this chapter is deleted according to the new book of NCERT that is published in 2023 to 24. So if you are studying in 6th standard, and obviously you are studying in this 6th standard and that is why you are watching this video, but if you are a student then you may not require to read this chapter. But if you are an aspirant who is preparing for some competitive exams, then you may have to go through this video. Fine, then let's start the chapter. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk saris as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. पहेली और बूजो ने अपने स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जो उनको प्राइज में मनी मिला था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। तो जब वो एक शॉपकीपर के पास गए कपड़े खरीदने के लिए, उनको बहुत सारी वैरायटी मिली क्लॉथ मटेरियल की और वो उसी में कंफ्यूज हो गए। शॉपकीपर ने उनको बताया कि इनमें से कुछ जो हैं कपड़े कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक के हैं। उसके पास वोलन मफलर भी थे जो सर्दियों में पहनी जाती हैं, और शॉल्स भी थी, और बहुत सारी सिल्क की साड़ीज भी थी। पहेली और बूजो बहुत खुश हो गए, एक्साइट हो गए। उन्होंने हर अलग अलग फैब्रिक को टच किया और फील किया। फाइनली उन्होंने एक वोलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। After their visit to the clothes shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk, or synthetic. Can you also identify some fabrics? अच्छा, जब वो क्लोथ शॉप से वापस आए तो पहेली और बूजो अपने आसपास के सभी फैब्रिक्स को देख करके उनका नाम बताने लगे। उन्होंने देखा कि बेडशीट्स जो थी, ब्लैंकेट्स थे, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स और डस्टर्स, ये सब अलग अलग फैब्रिक के बने हुए थे। यहाँ तक कि उनके जो स्कूल बैग्स और गनी बैग्स थे वो भी कुछ अलग फैब्रिक के बने हुए थे। उन्होंने बताया कि कुछ इनमें से जो है कॉटन है, कुछ वूल है, कुछ सिल्क है और जो कुछ सिंथेटिक है। क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1, visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of fabrics left over after stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool and synthetic after asking for help from the tailor. एक अपने आसपास की कोई टेलरिंग शॉप पे जाइए, उन्होंने जो कपड़े सिले होंगे उसमें से सिलने के बाद जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ बचती हैं उनको देखिए, उनको फील कीजिए और टच कीजिए उन्हें। अब हो सके तो उन सबको लेबल कीजिए, अलग अलग कीजिए कि उनमें से कौन कॉटन है, कौन सिल्क है, कौन वूल है और कौन सिंथेटिक है, और इसमें हो सकता है वो टेलर भी आपकी हेल्प कर दे। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? जब आपने देखा इन सभी फैब्रिक्स को तो आपको पता लगा कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं। जब आप किसी फैब्रिक को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यू चलते जा रहा है, कंटिन्यू पीस है। उस पर एक बार ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखेगा। जैसा ये फिगर 3.2 पे दिख रहा है, एक एनलार्ज्ड व्यू है ये किसी फैब्रिक का। ठीक है, ये फैब्रिक कैसे सिला जाता है आप इसके अंदर की ये लाइंस देख सकते हैं, ये उसकी वैसी सिलाई होती है। एक्टिविटी 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. Figure 3.3. If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. We find that the fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of?
अच्छा, आप अगर आपको ये मान लो, ये आप एक टुकड़ा है जो आपके हाथ में है, इसमें से एक साइड में से एक ऐसे धागा जो है आप खींच करके बाहर निकालिए। वो धागा एक एक करके ऐसे बाहर आएगा। अगर आपको धागा बाहर दिख नहीं रहा तो किसी सुई से या किसी पिन से बाहर उसको निकालिए, ठीक है। जब आप इसको निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये फैब्रिक जो है ये एक यान से बना हुआ है। यान्स को लाइन बाय लाइन अरेंज किया गया है और फिर वो क्या बन गया है, फैब्रिक। अब सवाल ये उठता है कि यान किसका बना होता है। 3.2 आता है फाइबर का। एक्टिविटी 3 देखो। टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, now press one end of the yarn with your thumb, scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? आप एक यान जो अभी आपने कॉटन फैब्रिक में से एक यान निकाला उसको लीजिए, इसको टेबल पे रखिए। एक यान को अपने थंब से दबाए रखिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने देखो इससे इसको दबा के रखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे वाले जो दूसरा एंड है उसको अपने फिंगर से ऐसे खोलने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि ये यान भी छोटे छोटे और पतले पतले धागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर एक फिगर इसकी भी दी हुई है ऐसी वाली। इवन इलेक्ट्रिक वायर्स भी ऐसी हो जाती है, लेकिन कभी उनको मत ट्राई कीजिएगा। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. जब कभी भी हम सुई में धागा डालने जाते हैं तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये धागे के ऐसे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स जो हैं बाहर निकल आते हैं और इन सभी को एक साथ उस निडल के आई में से पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इन सबको बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है। मूविंग ऑन, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वेयर डू वी दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? ये लाइन आपके बड़े काम की है, ये पूरी जो दो लाइनें हैं ये आपके बड़े काम की है। एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चंस हैं। फैब्रिक्स जो हैं यार्न के बने होते हैं, फैब्रिक यानी पूरा कपड़ा। यार्न जो है फाइबर का बना होता है। अब ये फाइबर हमें कहाँ से मिलता है वो देखिए। दो सोर्सेज होते हैं इसके भी, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे फूड के सोर्सेज थे। द fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क और वूल जो है हमें एनिमल से मिलता है। इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप और गोट। वूल हमें कहाँ से मिलता है? गोट के या शीप के चमड़ी में से हमें मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। अच्छा, जो हमारा वूल था वो हमें रैबिट, याक और कैमल की स्किन में से भी, हेयर में से भी मिलता है। सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है। अब ये क्या होता है ये आप आगे चल करके पढ़ेंगे। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plants or animal sources. These are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. अच्छा, आज से जब ये कपड़े बनाना शुरू हुए थे तो हज़ारों सालों तक कपड़े हम सिर्फ नेचुरल चीज़ों के ही पहनते थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि सिंथेटिक होता क्या है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आई, मशीनें आई जिनसे हमने कपड़े बनाना शुरू किया, और वो कपड़ा बनाने के लिए जो हम मटेरियल लेते थे वो प्लांट या एनिमल में से नहीं लेते थे। ऐसे कपड़ों को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉलिस्टर पॉलिस्टर नायलॉन और एक्रिलिक, ठीक है। सम प्लांट फाइबर्स, जो अभी हमने 4 प्लांट फाइबर्स देखे, एक तो था कॉटन, दूसरा था जूट, तीसरा था वूल और एक और था जो उसमें से निकलता है सिल्क, ठीक है, सिल्क वॉर्म में से। अब इन सब के बारे में आप एक एक करके पढ़ेंगे। कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोस। कभी आपने दिया जलाने के लिए उसमें जो एक हम रखते हैं कॉटन की ही चीज़ होती है वो, अब वो आपकी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विक्स। ये भी हम कॉटन की बनाते हैं। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स? कॉटन।
ये कॉटन वूल जो है हम मैट्रेसेस फिल करने, जिस गद्दे पे हम सोते हैं, और क्विड्स और पिल्लोज जो हमारा तकिया होता है उसको फिल करने के लिए भी हम ये कॉटन यूज़ करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. आपका जो कॉटन वूल है उसको लीजिए, उसके एजेस यानी कि जो उसके किनारे हैं वहां से उसको खींचिए, अलग अलग दिशा में खींचिए। जब आप खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से और भी पतले पतले धागे से निकल रहे हैं, और ये धागे जो हैं कॉटन फाइबर के बने होते हैं। Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Can you name some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field is covered with snow. अच्छा, अब देखो इसमें जो कॉटन हमने अभी देखी वो आती कहाँ से है? कॉटन जो है खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स नॉर्मली उन जगहों पे उगाए जाते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल और गर्म क्लाइमेट हो। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, हमारे गुजरात है, महाराष्ट्र है, और भी कई सारे हैं जहाँ पर ये कॉटन उगाई जाती है। फ्रूट्स जो हैं कॉटन प्लांट के, जिसको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं, ये एक लेमन यानी कि नींबू के साइज जितने होते हैं। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं यानी पूरे पक जाते हैं, तो ये बॉल्स जो हैं वो खुल जाते हैं और सीड्स जो हैं कॉटन फाइबर से कवर हो जाते हैं, और फिर वो कॉटन फाइबर को आप देख सकते हैं। कभी आप अगर ऐसे खेत को देखेंगे जहाँ पर कॉटन जो है एकदम रेडी है, यानी पूरा का पूरा हार्वेस्ट के लिए तैयार है, तो आपको लगेगा कि उस पूरे फील्ड पे बर्फ छाई हुई है, क्योंकि वाइट कलर का कॉटन होता है तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है उसके ऊपर। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. इन बॉल से कॉटन को हाथ से निकाला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन फाइबर्स को सीड से अलग किया जाता है बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग यहाँ पर वही वाला प्रोसेस है जो हम करते हैं अपने बालों के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, ये भाई साहब कर रहे हैं बड़ा वाला कॉम्ब लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग इस प्रोसेस का नाम है। पहले गिनिंग जो है हाथ से होती थी, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स भी गिनिंग करने के लिए अवेलेबल है। Second one is jute. Jute fiber is obtained from the stem of jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar, and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at the flowering stage. The stems of harvested plants are immersed in water for a few days. The stems and fibers are separated. Stems rot and fibers are separated by hand. अच्छा देखो, जो जूट फाइबर है वो हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। स्टेम का मतलब आई होप आप समझते हैं, ये जो डंडी होती है बीच में, ठीक है, उसमें से मिलता है। और ये कब उगाया जाता है? रेनी सीजन के द्वारा। इंडिया में जूट जो है मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में उगाई जाती है। जूट प्लांट जो है तभी हम उसको काट देते हैं जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है। फ्लावरिंग स्टेज यानी कि जब उसके फूल खिलने लगते हैं, ठीक है। इसकी जो स्टेम है यानी कि ये जो डंडी है, ये बीच वाली, इसको पानी के अंदर पूरा का पूरा डुबा के रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। फिर उसके बाद वो जो स्टेम्स हैं और उनमें से जो फाइबर्स हैं वो अलग किए जाते हैं हाथ से, ठीक है। ये एक जूट प्लांट की फिगर आपको साइड में दी हुई है। टू मेक fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? फैब्रिक बनाने के लिए इन सभी फाइबर्स को पहले यान में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी यान से क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा। और ये कैसे किया जाता है वो देखिए। यहाँ पर ऊपर एक आपको दिखाया गया है कि हाउ डू वी मेक अ यान फ्रॉम कॉटन। इवन जब हम अपने दिए के लिए वो बनाते हैं वट, उसमें भी हम ऐसे ही कुछ करते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं अपने हाथ पे रख के, हथेली पे रख के। स्पिनिंग कॉटन यान। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यान योर सेल्फ। अगर आप चाहें तो आप कॉटन यान खुद भी बना सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड,
Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make the yarn? The process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. अच्छा देखिए अब आप इसको बनाएंगे कैसे। इसकी यहाँ पर फिगर यहाँ पर देखिए जैसे ये दी हुई है। एक हाथ पे जो ये आपका फिंगर है और थंब है उसके बीच में इसको दबा के रखिए फाइबर को। दूसरे हाथ से इसको गोल गोल घुमा करके घुमाते भी जाइए और बाहर भी खींचते जाइए, तो आपका जो यान है वो धीरे धीरे बनता जाएगा। ठीक है, जो ये यान बनाने का प्रोसेस है फाइबर में से, ये जो प्रोसेस है जिससे हमने यान बनाया, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है, इस प्रोसेस में फाइबर्स जो हैं एक कॉटन वूल से निकाल करके उनको बाहर निकालते हैं और ट्विस्ट करते जाते हैं और इसलिए फाइबर्स टुगेदर आ जाते हैं और क्या बन जाते हैं, यान बन जाते हैं। फाइबर सब साथ में आ जाते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। फिगर 3.10 में दिया गया है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported cloth made in the mills of Britain. अच्छा, एक सिंपल सा डिवाइस है जो हम स्पिनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हैंड स्पिंडल। इसको हमारी भाषा में टकली भी बोलते हैं। ये वो डिवाइस है जो आपको इस फिगर में दिखाया गया है। एक और डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं चरखा। ये चरखा महात्मा गांधी जी ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया था। किस समय पर? इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के मूवमेंट के दौरान। उन्होंने बताया था कि आपको अगर आज़ादी चाहिए तो उन कपड़ों को पहनना बंद कर दो जो ब्रिटेन की मिल्स में बनी हैं। अपने खुद के कपड़े बनाओ और उन्हीं को पहनो। और इस कपड़े को नाम भी दिया गया था, वो था खादी। KHADI, खादी। Moving on. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. अगर आपको बहुत लंबे चौड़े स्केल पर यार्न्स बनाने हैं तो ऐसे सब हाथ से तो बना नहीं सकते, बहुत सारे हैं, तो उसके लिए स्पिनिंग मशीन्स भी हैं। स्पिनिंग करने के बाद आप इन यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर आता है यार्न टू फैब्रिक। कैसे बनता है ये? There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप फैब्रिक्स को यार्न में कन्वर्ट कर यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो मेन प्रोसेसेस हैं, वीविंग और निटिंग। इनको अलग अलग करके समझेंगे। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. आपने जब एक्टिविटी 2 की थी तो उसमें एक फिगर दिखाई गई थी कुछ ऐसी, है ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे सारे के सारे यार्न्स डले हुए थे। तो यहाँ पर वही बात है कि अगर आप कोई फैब्रिक देखें जिसमें दो यार्न्स आपस में अरेंज किए हों, तो इस प्रोसेस को, यहाँ पर टू को हमें याद रखना है, टू सेट्स ऑफ यार्न्स। अगर ऐसा किया हो तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वीविंग। ये नॉर्मली हमारी दादियाँ भी करती हैं। स्वेटर को बुनने का काम दो सुइयों से, वो वीविंग है। ठीक है, इसको ट्राई करने का कोशिश करते हैं दो पेपर लेकर के। टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 centimeter from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet, draw lines as shown in the figure 3.12a and on the other as shown as in the figure 3.12b. Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12c. Figure 3.12d shows the pattern after weaving all the strips. इसको थोड़ा सा ध्यान से ऐसे समझिए। देखिए सबसे पहले तो फिगर ए और फिगर बी दो आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार में आपको पेपर जो है ऐसे कट करना है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं पेपर्स को आपको इस तरीके से एक दूसरे के अंदर डालना है, जैसे ये इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के अंदर उसी पेपर को डालना है। जब आप डालेंगे तो वो पेपर जो है कुछ इस तरीके का बन करके आ जाएगा और यही आपका पीस ऑफ क्लोथ है। इसी तरीके से हमारा क्लोथ भी वीव होता है, एक के अंदर दूसरा जो है डला हुआ होता है। ठीक है,
In a similar manner, two sets of yarn are woven to make fabric. The yarns are much thinner than our paper strips, of course. Weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. सेम जिस तरीके से आपने ये दो यार्न्स को बनाया एक पेपर बनाने के लिए, पीस ऑफ पेपर बनाने के लिए, वैसे ही दो सेट ऑफ यार्न हम लेते हैं एक फैब्रिक बनाने के लिए। ये यार्न जो है आपके इस पेपर स्ट्रिप से बहुत पतले होते हैं और ये वीविंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हाथ से और दूसरा मशीन से यानी पावर ऑपरेटेड। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं ये हैंडलूम है जो एक लेडी कर रही है उसे। knitting, have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. ये वो प्रोसीजर है जो जैसे ये जो मैं दिखा रही थी आपको, ये हमारी दादी कुछ ऐसा ही करती हैं, है ना, दोनों हाथों से करती हैं इसको, इसको बोलते हैं निटिंग। अच्छा, कभी आप देखना जो आपके स्वेटर्स हैं वो निटेड होते हैं। निटिंग में एक सिंगल यार्न यूज होता है। और कभी आप अपने पैर, जो मान लो आपके सॉक्स जो हैं वो फट चुके हैं, कोई भी ऐसा सॉक्स उठा लेना जो फट चुका है, उसमें से एक धागे को पुल कर लेना, पुल करते जाना जब तक वो धागा पूरा नहीं हो जाता। जब तक आप उसको पुल करोगे पूरा सॉक्स जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो बन जाएगा एक धागा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही धागा है जिससे वो पूरा का पूरा सॉक्स बनाया गया है। अगर आप उस धागे को खींचते जाएंगे तो फैब्रिक धीरे धीरे खुलता जाएगा। ठीक है, निटिंग जो है हम हाथों से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। पहेली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? कवरिंग कोकोनट के ऊपर भी आप देखना धागे होते हैं जो जो नारियल हम फोड़ने के लिए काम करते हैं उसमें। पहेली सोच रही है कि क्या इससे भी कुछ बनता है, तो आप सोचिए और बताइए कि क्या ये फाइबर्स भी कुछ बनाने के काम आते हैं। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. Weaving और knitting जो है अलग अलग kind of fabric बनाने में काम आती हैं। ये fabric से हम अलग अलग कपड़े बना सकते हैं। अब कपड़ों की history देखिए थोड़ी सी। History of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times, people used the bark and big leaves of trees और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। कभी आपने ये सोचा है कि पहले के ज़माने में जब कपड़े के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था तो लोग क्या यूज़ करते थे? पॉसिबल है कि वो जो पेड़ के बड़े बड़े पत्ते हैं या बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, बार्क मतलब उसकी खाल, उसको यूज़ करते हो या एनिमल स्किन को यूज़ करते हो अपने आप को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fleas on hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. जब धीरे धीरे लोगों ने एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में वो रहने लगे यानी खेती बाड़ी करने लगे, साथ में रहने लगे, तो उनको पता चला कि ग्रास से भी और जो ट्विग्स हैं यानी जो पत्ते हैं उनसे हम मैट्स और बास्केट्स, मैट यानी जो फरासी जिस पे हम बैठते हैं वो, और बास्केट वो लोग बना सकते थे। ठीक है, वाइन्स, एनिमल फ्लीज या हेयर जो एनिमल से निकलती हैं उनकी चमड़ी या उनके बाल, उनसे उनको भी ट्विस्ट करके आप उनसे लंबे लंबे धागे बना सकते हो और उन धागों से आप आगे चल के फैब्रिक्स बना सकते हो। जो पहले के इंडियंस थे उन्होंने कॉटन के फैब्रिक्स पहने थे और ये कॉटन कहाँ उगता था? गंगा नदी के आसपास के रीजन्स में। फ्लैक्स is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो नेचुरल फाइबर्स देता है। जो इजिप्ट है, इजिप्ट एक कंट्री है, आज भी है, लेकिन पहले वाले इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों रिवर नाइल के पास उगाए जाते थे और फिर इनसे फैब्रिक्स बनाए जाते थे। याद कीजिए कि रिवर नाइल जो है वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट river है, as far as I know. In those days, stitching was not known. People simply draped the fabrics around different parts of their body. Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations
since this invention. But is it not amazing that even today, sari, dhoti, lungi, turban is used as an unstitched piece of fabric? अच्छा, पहले लोगों को ये नहीं पता होता था कि सिलाई नाम की भी कोई चीज़ होती है, स्टिचिंग भी होता है। तो वो सिंपली क्या करते थे, इन फैब्रिक्स को अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे सिर्फ ओढ़ देते थे। उस समय पर ये ड्रेप करने का यानी ओढ़ने का अलग अलग तरीके जो है निकल आए। जैसे जैसे सिलाई मशीन या सुइंग निडल का इन्वेंशन हुआ, लोगों ने कपड़े सिलना शुरू किया, और जो सिलाई हुए किए हुए मशीन थे, इस इन्वेंशन के बाद उनमें बहुत सारे बदलाव भी आने लगे। ऐसा कहा जाता है कि पहले जो कुर्ता लोग पहनते थे वो फुल स्लीव्स का होता था। एक इंसान ने उसके ऊपर आयन रखा था जो वो उसको प्रेस कर रहा था, है ना? तो आयन करने के समय पर वो उसको उधर ही रख करके भूल गया स्लीव्स के ऊपर। तो वो स्लीव्स उधर से जल गई और उसने फिर जो जला हुआ पार्ट था वो काट दिया, स्लीव्स छोटी बन गए, वो छोटी स्लीव्स जो है फैशन बन गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग इन्वेंशंस होते रहे सिलाई किए हुए कपड़ों में भी। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन भी, या पगड़ी भी जिसको हम बोल सकते हैं, ये सब अनस्टिच्ड ही पहने जाते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. हमारे पूरे देश में हमने देखा है कि हर जगह पर अलग अलग खाना खाया जाता है। सिमिलरली हर जगह पर अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहने जाते हैं। So this was chapter 3 of class 6th NCERT. Hope this was useful for you, and इवन अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इस लेक्चर को सुन सकते हैं। Well, thank you so much for patient hearing, and if you want to share this video with your friends, you can, and do like the video if you found this video useful, and subscribe the channel. Thank you so much.